you know, today is a presentation class. So are you ready? Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. Do you have your topic? Yes. What's your topic name? Tell. What's your topic name? Printer and keyboard and mouse. It means all fundamental topics you have, right? So are you ready with your topics? Yes, ma'am. Do you have fear? Yes, ma'am. No fear? So are you ready to come here? Yes. Okay, all the best, dear. So come now. Today I'm going to call for the first performer of the day, and he is none other than Mr. Do you know who is he? Yes. He is very, very excited. He told me, ma'am, please call me first because I'm very, very excited to tell my topics. I'm totally ready. So he's gonna explain about. Now I'm going to call Mr. Irfan. Please come on the stage. Yes, Mr. Irfan, are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. You are ready. Okay, so do you have hesitation? I have a something. Something hesitation. Okay, so now explain your topic. The front of public, definitely your hesitation will be removed after some time. So start and all the best. Good morning, all of you. Good morning. My name is Muhammad Irfan. I am from Chitara Mahmudpur. My qualification 12 pass. 12 pass. My course name DFA, Diploma in Financial Accounting. I am going to explain about mouse. माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा स्क्रीन पर पॉइंटर को दिखाता है और एप्लीकेशन को हैंडल करते हैं। इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट मिडल। इसके फादर डगलस एंजलवर्थ हैं। इसका आविष्कार 1967 ईस्वी में हुआ। सो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा इरफान ने माउस के बारे में बताया आप लोगों को, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी। क्यों था? क्योंकि पहले तो इनकी टॉपिक तैयार नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कैमरे से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशन देना है, जिसके पास बहुत सारी टॉपिक है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके एक लोगों का प्रेजेंटेशन लेंगे, और ये प्रेजेंटेशन ऑन द बेस ऑफ इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि इनका डर निकले और बाकी जो टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें नहीं जान रहे फंडामेंटल से, उनका प्रिपेयर भी हो जाए। सो यहाँ पे नेक्स्ट को हम बुलाना चाहेंगे, जो नेक्स्ट जिसकी टॉपिक है। सो फ्रॉम द गर्ल साइड, बिकॉज बॉयज 1 बॉय हैज़ डन। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल मिस तो नहीं है आज, वो नहीं आई तो है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल नेक्स्ट परफॉर्मर ऑफ द डे। शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल, Miss Chandni. Please go on the stage. First of all, thank you so much, ma'am, for calling me here and giving me this beautiful opportunity to speak here. And thank you so much to all of you for sitting here and giving your attention. Well, my name is Chandni. I am from Suran. As we all know that it's our presentation class today. So I'm here to front of you to present a beautiful concept about a computer. So before starting my topic, I want to share with you a शायरी। मत कर तमन्ना किसी को चाहने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को चाहने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इस कदर कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। So without wasting time, let's get on the topic. So today I will describe about a printer, but in printer I will tell you about the 3 things. Number first, what is printer and who is the father of printer? And number second, how many types of printer? And number third, what is the difference between impact printer and non-impact printer? So let's start it. So firstly, what is printer? So it is an output device which is used to input, means that print anything such as images, documents and etc. And if I talk about who is the father of printer, so Charles Babbage, he first designed the mechanical printer. And number second, that how many types of printers? So there are 2 types of printer. Number first, impact printer, and number second is that non-impact printer. If I talk about the impact printer, so it can print anything as a documents on paper with the help of the क्या बोलते हैं, physical streaks. As like, and there are also 2 types. Number first, the character printer, and number second is that line printer. Okay. And if I talk about that non-impact printer, so एक यह ऐसा प्रकार का प्रिंटर होता है जिसे प्रिंट करने के लिए हम इसे पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं और क्लॉथ पे भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन पे भी प्रिंट कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल स्ट्रिक्स. And if I talk about how many types of this, so there are also basically 2 types. Number first, inkjet printer. Number second is that layer printer. And number third question is that what is the difference between impact printer and non-impact printer?
So we can say that firstly I will tell you about the impact printer and after that non-impact printer. So impact printer is that we can print anything with the help of the physical streaks, but non-impact printer we can print anything without any physical streaks, and they are available in the less quantity in the market. But if I talk about the non-impact printer, so they are available in the market in the best quantity. And if I talk about the price, so you can available it impact printer very cheap prices. But if I talk about the non-impact printer, so you can available in this market in very costly prices. So this is the difference between impact printer and non-impact printer, and I hope to all of you have listened carefully. So before ending my topic, I wanna also say a शायरी that सपने को अपने निगाहों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो। सपनों को अपने निगाहों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे चांदनी ने एक्सप्लेन किया अबाउट प्रिंटर एंड इट वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन बाय मिस चांदनी। सो यहाँ पे चांदनी ने आपको बताया कि प्रिंटर होते क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और मार्केट में कौन से प्रिंटर ज़्यादा अवेलेबल है, कॉस्टली कौन से, सारी चीज़ उन्होंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इससे कुछ सीख पाएँ। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं स्टूडेंट में, क्या कुछ बहुत स्लो होते हैं, कुछ थोड़ा फास्ट होते हैं, इसीलिए इस चीज़ वीडियो को क्या किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और उनके डर को कहीं ना कहीं भगाया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कोटेशन भी बोला जिससे आप मोटिवेट हो सके। यहाँ पे नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं जो कि बताने वाले हैं आपको अगले टॉपिक के बारे में। सो नेक्स्ट जो है हमारे थर्ड परफॉर्मर ऑफ द डे फ्रॉम द बॉयज साइड एंड ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर अभिषेक। प्लीज गो ऑन द स्टेज विथ योर टॉपिक। Firstly, I would like to say thank you so much, ma'am, for calling me on the stage for explaining something. And good morning, ma'am, and good morning to all of you. Firstly, I want to say my name is Abhishek Rajwar, and I from Chitara Mahmudpur. And I have a beautiful topic for explaining something. The name of my topic, mouse. Mouse is input device. Firstly, guys, I want to say what is mouse. Mouse is an input device by which we can handle anything in monitor. And there are three types of key. You can see left, right and middle. And there is a one wire, USB. The name of USB stand for Universal Serial Bus. Color of mouse, Douglas Engelbert. Every student they all have hesitation, I know very well because it's a presentation class और presentation में क्या होता है कि आपको स्टेज को फेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अभी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, मतलब पहली बार कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। तो कितने लोग हैं जो पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? रेज़ योर हैंड। यहाँ पे हाँ, पहली बार प्रेजेंटेशन कौन कौन दे रहा है? तो यहाँ पे ये सारे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो इनको तो डर लगने ही वाला है। बट वो कहते हैं ना कि डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और यहाँ पे डर के आगे कैमरा है कह रहे हैं, जैसे कि कैमरा सबसे बड़ा डर होता है। तो चलिए यहाँ पे अगली टॉपिक देखते हैं कि अगला प्रेजेंटेशन कैसा होता है और उनकी टॉपिक क्या है और वो कौन है। तो यहाँ पे एक सस्पेंस है, देखते हैं कि अगली टॉपिक एक गर्ल्स फ्रॉम द गर्ल साइड में बुलाना चाहूँगी। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस Lakshmi. Please go on the stage for you with your topic. Come on, Lakshmi. Good morning, ma'am, and good morning to my dear lovely friends. Good morning. Well, my name is Lakshmi. I am from Basti Kapuri. Today's presentation class. So today I want to tell about keyboard. This is a keyboard. Keyboard एक input device है। इसमें अनेक प्रकार की की होती है। कीबोर्ड के फादर है क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। ये 1868 ईस्वी में बना था। इसमें 5 प्रकार की होती है, फंक्शनल की, अल्फ़ाबेटिकल्स की और न्यूमेरिकल्स की एंड स्पेशल की, एरो की। इसमें फंक्शनल की F1 से लेकर F12 तक होती है, अल्फ़ाबेटिकल की A to Z होती है और स्पेशल की शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट होती है। इसमें सबसे बड़ी की स्पेस होती है। और कीबोर्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। सिंपल कीबोर्ड जो है हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड ये
जो कि बैंकों में ज़्यादातर यूज़ होता है। हाल बेहाल है मगर फिर भी दिमाग में कुछ सवाल है, टॉपिक का ख्याल है और स्टेज पे बुरा हाल है। चलिए देखते हैं कि अगली टॉपिक में क्या कमाल है और किसकी बातों में कितना बवाल है और कितना सवाल है। अब मेरा नेक्स्ट को बुलाने का ख्याल है। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सूरज, प्लीज गो ऑन द स्टेज। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Well, my name is Suraj Azhar. I am from Martinganj, and I am a student of computer, and my course is ADCA. ADCA stands from Advanced Diploma in Computer Application. So, guys, I am going to talk about monitor. So, guys, do you know what is monitor? Yes. See, that's monitor. Monitor is an output device that display information को दिखाता है. So guys, do you know how many types of monitor? So there are many types of monitor. First, CRT. It's old and bulky and used to cathode ray tube. And second, LCD. LCD is third, LED, and second, touch screen. And की वही तो मैं सिखा भी चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि बताई नहीं होगी कैसे बोला जाता है। अब आप लोग तुम्हारे जगह आज नए भूल गए. कैसे बोल रहे हो एक बार देखो। अच्छा आप लोग बताओ चलो No, man. क्या है, मतलब हिंदी मतलब बॉडी लैंग्वेज पब्लिक यहाँ पे ना उनको समझाने की कोशिश करो जैसे लग रहा है उनको पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट परफॉर्मर ऑफ द डे फ्रॉम द गर्ल साइड and she is none other than Miss Anshika. Please go on the stage with your topic. So now Anshika is going to explain about her topic and we don't know that what is the topic. So let's see. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. My name is Anshika Prajapati. I come from Lashnakod. My course name is ADCA. ADCA stands for Advanced Diploma in Computer Application. So, my topic name is CPUs. CPU कंप्यूटर की तरह होता है CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। CPU को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। CPU इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेसिंग करते हमें आउटपुट प्रदान करता है। CPU के दो भाग होते हैं, मेन पार्ट और इंटरनल पार्ट। मेन पार्ट में बताओ मेन पार्ट में क्या करता है, इंटरनल पार्ट में क्या करता है? मैम इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। इंटरनल पार्ट में HDD, FDD, SMPS मदरबोर्ड। HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और इसका SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। एक लाइन है जो मुझ पर बहुत सूट करती है, कुछ ऐसे है कि अनु मैम पे यही सूट करता है जब कहते हैं कि हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। और वही पढ़ाई में भी फॉलो होता है कि हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। बेशक मेरी पढ़ाई में, मेरी बातों में मजाक होता है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। जब मैं कहती हूँ कि प्रेजेंटेशन है तो मतलब है, जब मैं कह रही हूँ कि रिटन टेस्ट है तो मतलब है। अब चाहे मैं उसको हंस के कहूँ, मार के कहूँ, डांट के कहूँ, कैसे भी कहूँ, आप लोग का काम है कि उसको प्रिपेयर करके आना है तो है। अब यहाँ आप हंस के पढ़ाइए, सीरियस होके पढ़ाइए, जैसी आपका बिहेवियर है वैसे पढ़ाइए, बट इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए। आज तो जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस है क्योंकि उसमें बहुत सारे नए लोग। सो चलिए फिलहाल आप लोग को मोटिवेट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मोटिवेशन जैसे ही आप छत से नीचे उतरेंगे वैसे वो दिमाग से नीचे उतर जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट परफॉर्मर ऑफ द डे फ्रॉम द बॉयज साइड एंड ही इज मिस्टर
Saurabh, please come on the stage. Mr. Saurabh. मैं टॉपिक नहीं दी थी. इधर आओ. कितने दिन एब्सेंट थे आप? मैं एक ही दिन एब्सेंट था. एक दिन एब्सेंट थे. और गाइज यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, इसकी टॉपिक 3-4 दिन पहले से डिसाइड हो रही है और शनिवार को होगा, ये भी पता था. कल मैम नहीं आई थी, आप आए थे? यस मैम, मैं आया थे. किसी से पता चला था कि सैटरडे को प्रेजेंटेशन बताए थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कौन सा टॉपिक है. सबको आप बांटी थी. टॉपिक मैंने दिया था कि आप लोगों ने डिसाइड किया था? टॉपिक तो सब अपने से डिसाइड किए थे. आपको कोई टॉपिक नहीं मिली? नो मैम. और आपको माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब पढ़ाया नहीं गया है फंडामेंटल में? पढ़ाया गया है. फिर कैसे याद नहीं है? मैम याद है, थोड़ा मोड़ा याद है, उतना नहीं याद है. क्या बता सकते हैं? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर कॉन्सेप्ट, कुछ भी क्या बता सकते हैं? फ़ोन साइलेंट करिए आप लोग. मैम कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बता सकता हूँ. बता सकते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है, उनके फादर कौन है, कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, बता सकते हैं? चलिए बताइए. मैम कैमरे के सामने. मैम कैमरे से क्या डर लग रहा है? मैं आपके सामने खड़ी हूँ. नो मैम, कैमरे के सामने नहीं. क्यों? मैं वैसे बोल दूँगा कैमरे के सामने नहीं. कैमरे में ऐसा क्या है जो कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं? कैमरे के सामने नहीं. मैं वैसे बोल दूँगा लेकिन कैमरे के सामने नहीं. कैमरा ऑन करो जी. चलो पकड़ो इसे. बोलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज़ सौरभ विश्वकर्मा और मैं दुबरा बाज़ार से आजमगढ़ से रहता हूँ. और मैं आज कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा कितने प्रकार क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है और कितने प्रकार की इसमें पाई जाती हैं, क्या क्या इसमें होता है, सब बताएंगे हम. ओके. सो जैसा कि यहाँ पे सौरभ आपको कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं और यहाँ पे हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि इनका अभी जो है फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन है और इनको बहुत ही डर लग रहा है. तो यहाँ पे आप बताइए कि कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं और इसका यूज़ क्या है? मैम कीबोर्ड को हिंदी में हम कुंजी बटन कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम इसमें 5 की पाई जाती हैं. मैं उतना याद नहीं है, थोड़ा मोड़ा याद है. कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इसकी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है. ये इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है. ये बिना लाइट के नहीं चलेगा. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें अनेक प्रकार की कीज लगी होती है. कीज को दबा के हम डेटा को इनपुट कर दे कंप्यूटर में. यस मैम. और इसमें 5 की पाई जाती हैं. It's a presentation class, as you know. So my topic name is keyboard, mouse, monitor, printer. Today I'm going to explain these all things in front of you. So are you ready? Yes. Are you ready? Yes, ma'am. First of all, I would like to ask a question to all of you. As you know, I have told you everything about the fundamental, like what is mouse, what is keyboard, monitor, printer, everything. So do you know what is this? What is this? Monitor. This is monitor. And what is this? This is keyboard. And what is this? This is mouse. अगर हम आपसे बात करें नॉर्मली कि जो ये हमारा मॉनिटर है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो मॉनिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चित्रपटल कहते हैं. और जो ये मॉनिटर होता है ये हमें क्या करता है? वीडियो प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले पे प्रोवाइड करता है ये हमें. तो वहाँ पे एक क्या होता है? VDU होता है. और वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे होता है. जबकि मैंने पूछा है BDU क्या होता है? विजुअल मतलब क्या होता है? दिखाई देने वाला. डिस्प्ले मतलब होता है क्या? हमारा जो स्क्रीन जो डिस्प्ले पे दिखता है. और यूनिट मतलब होता है डेटा. तो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखने वाला डेटा होता है जो कि हमें किसके द्वारा दिखाई देता है? मॉनिटर के द्वारा दिखाई देता है. अब अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे कीबोर्ड की, तो ये क्या है? कीबोर्ड है जिसमें आपको दिख रही होगी यहाँ पे बहुत सारी कीज़ दिख रही हैं और ये अलग अलग कीज़ हैं. तो यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड जो है ये आपका कैसा कीबोर्ड है? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की, 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सिंपल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड. तो ये कौन सा कीबोर्ड है हमारा? सिंपल कीबोर्ड है. और ये सिंपल कीबोर्ड जो बटन है सिंपल कीबोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि सिंपल कीबोर्ड है या फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है? कितने बटन होती हैं?
104 से 106 बटन होती है। और अगर इस बटन को, ये जो हमारी कीज़ है, अगर इसको हम सेपरेट करें, कैटेगराइज करें तो कितने टाइप्स की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? फंक्शनल की, अल्फ़ाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, एरो की एंड स्पेशल की। स्पेशल की में क्या क्या आता है? अल्ट आता है, कंट्रोल आता है और शिफ्ट आता है, जो कि यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। और इसमें 3 लॉक भी होती है जो कि हम कीबोर्ड का यूज़ करते समय उसका भी यूज़ करते हैं। कौन कौन से लॉक हैं? नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक होता है। नम लॉक का यूज़ हम कीबोर्ड में कंप्यूटर चलाते समय क्यों करते हैं? नंबर जो होता है उसको लॉक और अनलॉक करने के लिए। और वो जैसे कि हमारा ये नंबर है, यहाँ पे न्यूमेरिकल की है, जब ये लॉक होता है तो हम कहते हैं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमें देखना है कि नंबर कहीं लॉक तो नहीं हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम नम लॉक को एक बार ऑन और ऑफ करेंगे। यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेटिकल की है, जबकि हम जब लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा स्मॉल लेटर बेसिकली लिखा होता है। अगर हमें इसे कैपिटल लिखना हो बड़े लेटर में तो क्या करते हैं? कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। और अगर हमें यहाँ पे, जैसे कि आप तो अल्फ़ाबेटिकल हो गया, अगर हमें फंक्शन को स्टार्ट करना हो, जैसे हम हेल्प लेना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, और या तो हम कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, ये सारे फंक्शन यूज करने हैं, तो हम कीबोर्ड की किस की का यूज़ करते हैं? फंक्शनल की का यूज़ करते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है? F1 से F12 तक होता है। अब अगर हम बात करें कुछ स्पेशल की, स्पेशल की से कहते हैं जो कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, और जो हमारा क्या हो, मतलब उस सारी कीज़ में या उस सारे इंसान में उसका अलग ही वर्क हो। तो स्पेशल मतलब होता है जब कंट्रोल के साथ हम ए प्रेस करते हैं तो कुछ अलग काम कर देता है, जब हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करते हैं तो कुछ अलग काम होता है, और जब हम अल्ट के साथ ए प्रेस करते हैं तो कुछ अलग काम होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि इनके फादर कौन था जो पहली बार कीबोर्ड को क्या है बनाया था? क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स, जो कि कीबोर्ड को बनाए हुए थे। और उन्होंने क्यों बनाया था इस कीबोर्ड को? ताकि हम बहुत ही आसानी से ईजिली डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सके बाय प्रेसिंग दीज ऑल कीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये बेसिक जो सिंपल कीबोर्ड होता है वो हम एजुकेशन, छोटे मोटे शॉप, जनरल शॉप्स वगैरह हो गए, नॉर्मल जॉब हो गई, ऑफिस में, होम में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया कीबोर्ड की तो कहाँ यूज़ करते हैं? बैंक हो गया, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वर्क वगैरह होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये छोटू सा क्या दिख रहा है? माउस है, जो कि छोटा तो है बट कंट्रोल बहुत सारी चीज़ें करता है। तो इसका काम क्या होता है? जो स्क्रीन पर पॉइंटर दिखता है वो क्या करता है? उसे ये कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन जो ऑन ऑफ होते हैं और जो भी चला रहे हैं हम लोग, यूज़ कर रहे हैं, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। अब ये जो है, आपने घर में जो चूहा देखा होगा, कौन सा चूहा है? डिजिटल है या फिर पेट चूहा है? घरेलू है ना वो, उसे तो हम लाइट से चला नहीं सकते हैं, लेकिन इसे कैसे चलाएंगे? इसका काम का ये डिजिटल चूहा है हमारा। यहाँ पे जब ये जलेगा तभी ये चलेगा, और वो जब, और घर वाला चूहा जब खाएगा तभी इधर उधर जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि चूहे में देखे होंगे, उसका जो टेल होता है, पूँछ होती है, यहाँ भी एक पूँछ है, ठीक है, इसका क्या नाम है? USB होता है, जो कि स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। और यहाँ पे जो ये इसका फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे 3 बटन दिख रही है आपको, सबको दिख रही है? कौन सी बटन होती है? लेफ्ट, राइट एंड मिडल बटन होती है। तो यहाँ पे जो हमारी मिडल बटन है उसको और भी कुछ बोलते हैं, स्क्रॉल बटन। इसका काम क्या होता है? टू स्क्रॉलिंग। जैसे आप इंस्टा, यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, जो पसंद आता है उसको देखते हैं ना, नीचे ऊपर करते रहते हैं, अप एंड डाउन। तो स्क्रॉलिंग ही, मतलब यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग ही करेंगे, अप एंड डाउन। राइट एंड लेफ्ट हमारी बटन होती है जिसमें फंक्शन का यूज़ करते हैं, टू परफॉर्म एनीथिंग। अगर हमें कोई चीज़ कंट्रोल करना है या कोई फंक्शन ऑन करना है तो हम लेफ्ट एंड राइट का यूज़ करते हैं। सो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया? माउस। इसको डिज़ाइनर, इसको बनाने वाले कौन थे? डगलस एंजल बट थे। मॉनिटर के बारे में जैसा कि हम जान चुके हैं, मॉनिटर की भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? CRT मॉनिटर में जैसे कि पुरानी टीवी कौन कौन देखा है? जो बड़ी सी मोटी सी होती थी और ब्लैक एंड वाइट भी होती थी, रंगीन भी होती थी। पुरानी टीवी जानते हो आप लोग? देखे हो? गोपी बहू और साथ निभाना साथिया, कुंडली भाग, छोटी बहू, मोटी बहू, आता था ना ये सब।
तो वो सब सीरियल्स आते थे। अब तो फ़ोन आ गया है, फ़ोन में जो मन करे जैसे मन करे एक ही दिन में सब देख डालो। तो पहले की जो टीवी होती थी, और जैसे कि सबके घर में नहीं होता था पहले, सब लोग दूसरे के घर में भी देखने जाते थे। अब तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी आप लोगों को, अपने घर में फ़ोन है, टीवी सब कुछ है। तो पहले के जो मॉनिटर होते थे ना, वो थोड़े से क्या होते थे, भारी होते थे और मोटे होते थे, जिसको क्या बोलते थे, CRT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब होता था। उसके बाद हमारा LED LCD आया। LED LCD आप देखे होंगे, पतली सी होती है, दीवार में भी लगी होती है और वहाँ पे सेट भी किया जाता है, जैसे अगर आपके पास जो भी हो प्लेस वगैरह। तो LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं पूरा तो बता नहीं रही हूँ, आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ आकर के बताने में प्रॉब्लम हो रही है। आता तो सब कुछ है, बस प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। CPU क्या होता है, CPU इज़ अ माइंड ऑफ कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल माइंड होता है, जो कि हम और आप नहीं बनाया, हम जैसे लोगों ने, इंसान ने ही बनाया है। इसके पास इसका खुद का IQ लेवल नहीं होता है। ये परफॉर्म कैसे करता है, जो हमारे और आपके द्वारा इंफॉर्मेशन डाली गई होती है उसको प्रोसेस करके हमें क्या देता है, मॉनिटर पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके टाइप्स कितने होते हैं, इंटरनल और मेन पार्ट होते हैं। अब मेन पार्ट में क्या क्या आता है, कौन बताएगा? यहाँ पे अंशिका ने लिखा ALU, CU और MU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। खाना खा करके नहीं आए हो? नहीं। सो क्या होता है ALU का फुल फॉर्म? CU का फुल फॉर्म? MU का फुल फॉर्म? और यहाँ पे इंटरनल पार्ट में हमारे क्या होते हैं, रिलेटेड टू मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस से। तो HDD का फुल फॉर्म, FDD का फुल फॉर्म, HDD का फुल फॉर्म, CD का फुल फॉर्म, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। SMPS का फुल फॉर्म, CPU को किसने बनाया था, किस कंपनी ने? मदरबोर्ड को किस कंपनी ने बनाया था? गीगाबाइट ने। जैसे मदरबोर्ड और जैसे CPU को इंटेल की कंपनी ने, वैसे मदरबोर्ड को गीगाबाइट की कंपनी ने बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा CPU हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना, वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग बचे हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए और थोड़ा सा उनका डर निकालने के लिए हमने कुछ चीज़ें बता दी हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आना है और करना क्या है, फर्स्टली आपको ग्रीट करना है, उसके बाद जो भी आपकी टॉपिक है आपको बताना है कि ये होता क्या है। डर सबको लगता है, बार बार कह रहे हैं डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और लेकिन यहाँ माउंटेन ड्यू है नहीं और पानी भी नहीं है। आ गया, देखो पानी आ गया है। अब थोड़ा सा आपको भी यहाँ आना है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट परफॉर्मर ऑफ द डे आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर Saurabh. Please come on the stage and Saurabh is gonna tell you about the structure of computer. यस सौरभ, आई नो कि सौरभ का ये फर्स्ट डे है और ये पहली बार जा रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने, और लगभग आपको अभी 1 हफ्ते या 10 दिन लगभग हुआ होगा इनको। तो थोड़ा सा डर है, बस इनको कोऑपरेट करना है गाइस आपको। और ये आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके पार्ट्स के नाम बताएंगे। एक छोटा सा इनके लिए टॉपिक, सौरभ आप इसको करेंगे, कोई बात नहीं है। डर फिर से वही बात सबको लगता है। सो चलिए यहाँ पे